Dear students, let us now start with alkynes. First of all, we do discuss isomerism in alkynes. Alkynes show following type of isomerism. Number 8, chain isomerism. The isomers differ in the nature of carbon chain. For example, we have one pentyne, pent-guanine, and pent-3-methyl but-guanine. They are chain isomers. Then we have functional isomers. Alkanes are the functional isomers of the alkynes. This is buta 1,3-diene and its isomer is alkyne butane. This is but 1. Then we have positional isomerism. The alkynes differ in the position of triple bond. This is our pent-guanine and this is pent-2-ine. These are the positional isomers of alkynes. After doing the isomerism in alkynes, we come to the methods of preparation of alkynes. How can we prepare alkynes in the lab? So we do methods of preparation of alkynes. First method is from calcium carbide. CaC2 plus 2 water. It is hydrolyzed in the acidic medium to give you calcium hydroxide plus acetylene gas. So calcium carbide can produce acetylene gas. Second method is from 1,1,2,2 tetrachloroethane, CHCl2, CHCl2 heated with 2Zn, loss of 2ZnCl2, we get ethyne or acetylene. Third method, that is our known method, Cole's electrolytic process. As I told you earlier, we can prepare all alkane, alkene and alkynes from this method. So in this case, we will be now electrolyzing the sodium maleate to get acetylene from the electrolysis. So that is from sodium maleate. CH double bond CH COONA, COONA, this is sodium maleate. It is subjected to electrolysis. Molecule will be broken from here, three parts. CH डबल बॉन्ड CH था, अब एक बॉन्ड और जनरेट होगा, एसिटिलीन बन गया. दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्लस 2 NaOH and hydrogen.
they are obtained at cathode. This is found at anode. So this is our fourth method of getting alkyne. Then we have Berthelot process, fifth method, Berthelot process. This is a name reaction. Two carbon rods or graphite rods, they are fitted in a discharge tube filled with hydrogen gas, and about 2000 Kelvin, the carbon of the graphite rod combines with hydrogen at about 2200 Kelvin to give you acetylene gas. Then from lower alkynes to higher alkynes, छोटे alkynes से बड़े alkynes भी बनाए जा सकते हैं. इसमें हमने हेल्प लेनी है सोडियम एस्टेलाइड, which is an organometallic compound heated with iodomethane. जब आप हीट करेंगे, you will remove NaI and product will be propyne. So this is the sixth way how we get alkynes. Seventh method is from chloroform or iodoform. दो मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म के लीजिए, 6 सिल्वर पाउडर के साथ गर्म कीजिए, 6 AgCl lost and you get product acetylene by this. So this is 7 method how to get alkynes. Then we have the chemical properties of alkynes. Physical properties: acetylene, propyne, butane, they are gases, and higher members, CY bonds, they will be liquids, and still higher one, they will be having waxy character, waxy solids. Due to increase in magnitude of the van der Waals forces, physical state of the lower alkyne is gaseous, higher alkyne they are liquid, and still higher one they are waxy solids. Now we come to the chemical properties of alkynes. First action we have already done number of times, addition of hydrogen, that is Sabatier-Sanders reaction. This we have done. If we take ethyne here, it adds up 2 molecules of hydrogen in the presence of nickel or platinum. At 475 Kelvin, product will be ethane. If you have triple bond like this and you supply hydrogen to it in the presence of palladium and CaCO3, so product will be here. This is called a Lindlar reduction. You will get cis alkene here, cis butene. If you are having the same reaction done with liquid ammonia, sodium and liquid ammonia, this is called as Birch reduction. यहाँ पे हम BSO4 भी ले सकते हैं. ये कहलाती है लिंडलर रिडक्शन, जिसमें सिस प्रोडक्ट मिला आपको. अब बिर्च रिडक्शन में यू विल गेट द ट्रांस प्रोडक्ट हेयर. डबल बॉन्ड ये लगेगा, मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड पर आ गए. दिस इज कॉल्ड एज ट्रांस ब्यूटेन. तो ये है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. और बिर्च रिडक्शन से हमने 2 प्रोडक्ट पाए, दैट इज ट्रांस एंड सिस एल्कीन्स are obtained by this method. Lindlar catalyst gives us the cis product, while the liquid sodium and liquid ammonia gives us the trans product by this method. Then we have addition of halogens.
acetylene can add up two molecules of Cl2 in the presence of CCl4 inert solvent. Product will be CHCl2, single bond CHCl2. This is called as acetylene tetrachloride. Similar reactions can also be shown by bromine. You will get acetylene tetrabromide, but this product is less stable. Iodination is reversible. Iodination is difficult. Due to large size of iodine, the bond between carbon and iodine, they are not stabilized. So this reaction will be limited. Then we have oxidation of alkynes. ऑक्सीडेशन कई तरह का है अल्काइंस का. सबसे पहले हम लेते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन. complete oxidation. C2H2 reacts with 5 by 2 O2, that is ignited. Product is 2CO2 plus H2O. So complete oxidation converts acetylene into carbon dioxide and water. Along with that, it produces large amount of heat, due to which it is used in oxyacetylene flame in the welding. Second is action of alkaline KMnO4. We get acetylene added with 4 nascent oxygen in the presence of alkaline KMnO4. Product will be oxalic acid. This method is also used to prepare oxalic acid in the laboratory. Then we have further, if we have propyne higher alkyne, it can also react with alkaline KMnO4 and can produce CH3COOH CO2. CH3COOCOH प्रोडक्ट आपको ऐसे मिलेगी. इसमें आपको मिलेगा पायरुविक एसिड CH3COOH. This is called as pyruvic acid. Then we have oxidation by ozone. This is called as ozonolysis. Ozonolysis में you have to take triple bonds alkyne, ozone is added in the presence of CCl4 or carbon disulfide. You will keep 1 electron here out of 3 bonds. 2 bonds have broken. This is acetylene ozonide. Heated with zinc and water to give you glyoxal. Loss of H2O2. This is called as glyoxal. So this is ozonolysis of acetylene. Then similar manner we can perform ozonolysis of propylbutane. You will be having one bond between triply bonded carbon now. It is treated with zinc and water to lose H2O2. Product will be CH3COCH3. This is called as butane 2,3-dione. So these are the ozonolysis reactions. Wherever there is a triple bond, ozone is added there, and on hydrolysis with zinc water, they will break up to give you ketonic or aldehydic compounds. So
So ozone as I told you earlier, in case of alkenes, it helps to establish the position of double bond and triple bond in the molecule. और स्ट्रक्चर इलूसिडेशन में, स्ट्रक्चर का पता लगाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है. देन वी हैव पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस. नंबर 3 पर आते हैं. नंबर 4 पे आधा पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस of alkynes. When 3 molecules of acetylene gas, they are passed through red hot copper tube, then it gives benzene. अगर आप इसकी जगह प्रोपाइन ले लें, 3 molecules in the same condition, you will get mesitylene by this method. सिमेट्रिकल ट्राइमिथाइल बेंजीन, एक पोजीशन पे मिथाइल लगा होगा, एक पोजीशन खाली होगी बेंजीन रिंग में. दिस इज कॉल्ड एज मेस्टाइलिन. और अगर आप एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, तो ये मॉलिक्यूल डाइविनाइल एसिटिलीन को दे सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड एंड CuCl. You will get 2 products, CH2 double bond C, C triple bond C, CH double bond CH2. This is called as divinyl. दो तरफ विनाइल ग्रुप है, ये विनाइल ग्रुप कहलाते हैं, divinyl acetylene. So these are the polymerization reactions of alkynes. Then we have very important question: why terminal alkynes are acidic in nature? But non-terminal alkynes are not. आंसर इसका ये है, टर्मिनल अल्काइन क्योंकि स्टार्टिंग में ही ट्रिपल बॉन्ड उनके ऊपर होता है और पहले कार्बन पे एक्टिव हाइड्रोजन है. नॉन टर्मिनल जो अल्काइन है वो बीच वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं होता है जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं. और यहाँ पर हाइड्रोजन तो है बट इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. इट कैन नॉट लूज हाइड्रोजन इजीली. बट हियर दिस कार्बन वाज sp hybridized. When S character is 50%, 50% P character hybridization के कारण यहाँ पर है. यहाँ पे 25% S character है, 75% P character है. तो जितना ज़्यादा S character होगा कार्बन के पास उतनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इट कैन रिलीज दिस प्रोटॉन मोर इजीली. तो ये इस प्रोटॉन को छोड़कर इट कैन प्रोड्यूस कार्बन आयन. This is carbon ion. Here no loss of proton. ये प्रोटॉन छोड़ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन है ही नहीं इन कार्बन के पास. This carbon ion is more stabilized. ये ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है due to sp कार्बन. sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लोन पेयर को ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है, उसको ज्यादा डिलोकलाइज अपने ऊपर कर सकता है, ज्यादा देर तक रख सकता है. इसलिए यह इक्विलिब्रियम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने की टेंडेंसी रखता है जो शो करती है कि इट एक्ट एज एसिडिक कंपाउंड. और इस एसिडिक कंपाउंड की नेचर को कंफर्म भी किया गया है. अगर हम एसिटिलीन को टॉलरेंस रिएजेंट से ट्रीट करें, टॉलरेंस रिएजेंट इन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो अगर हम उससे ट्रीट करें तो डेफिनेटली जो एक्टिव हाइड्रोजन है एसिटिलीन के दोनों तरफ टर्मिनल हाइड्रोजन है, दे आर लॉस्ट टू द टॉलरेंस रिएजेंट. ये आपने एसिटिलीन लिया है प्लस 2 सिल्वर अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH3 twice OH. इसको आपने हीटेड इन बॉइलिंग वाटर बाथ, उबलते हुए पानी के बर्तन में बॉइलिंग वाटर बाथ में रखना है. जब आप रखेंगे तो ये जो एक्टिव हाइड्रोजन है दे विल बी रिप्लेस्ड बाय सिल्वर और ये वाइट
प्रेसिपिटेट यहाँ आपको मिलेंगे, साथ में आपको 2 अमोनिया मिलेगी गैस, along with that you will have water। तो इस तरह से सिल्वर एसिटिलाइड का बनना दिखलाता है कि इसमें एसिटिलीन में एसिडिक करेक्टर है। Then we come to aromatic hydrocarbons। तो ये अल्काइंस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम चलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए, और इसमें जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या है? These are the compounds hydrocarbons having 4n plus 2 pi electrons in the cycle of carbons। This is also called as Huckel rule। इस रूल को Huckel's rule भी कहते हैं। तो system having 2, 6, 10, 14 pi electrons in cyclic systems, cyclic compounds are aromatic in it। ऐसे सिस्टम जो कार्बन साइकिल में या एक आधा आइटम उस साइकिल में दूसरा भी हो सकता है, उसमें अगर 2 पाई 6 पाई 10 पाई सिस्टम रखते हैं तो वो एरोमेटिक होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बेंजीन, बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, 1 2 3, तो ये 6 पाई सिस्टम है। अब आते हैं नेफ्थलीन की तरफ। ये 10 पाई सिस्टम है, एरोमेटिक है। अब आते हैं एंथ्रासीन की तरफ। दिस इज 14 पाई सिस्टम। अब आते हैं फ्रेंथ्रीन की तरफ। This is again 14 pi system। ये सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं because they contain 6, 10, 14 pi electrons in the aromatic system or in the cycle of carbon atoms। That's why they have aroma। They are sweet fragrance compound। उनमें से स्मेल एरोमेटिक एक टिपिकल स्मेल है जो बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स में एरोमा पैदा होता है, एक फ्रेगरेंस पैदा होती है, इसलिए इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम दिया गया। उसके बाद आपके पास है एरोमेटिक कंपाउंड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है बेंजीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। Molecular formula of benzene is C6H6। अगर 6 कार्बन का हम अल्केन लेते तो उसमें 14 हाइड्रोजन होते, C6H14 होता उसका फार्मूला, बट दिस फार्मूला इज C6H6। इट शोज दैट बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बेंजीन एक बहुत ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और इसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होने की आशंका है। नंबर 2 पे अगर इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो इट कैन अंडरगो addition reactions more easily। Substitution reactions would be difficult to carry out in the benzene, but anti to it, it has been seen that benzene shows more substitution reaction as compared to addition reaction। It suggests that there might be a resonating structure of benzene जहाँ बेंजीन कई कैनोनिकल रूप में एग्जिस्ट कर रहा होगा और ये रूप जो है वो अलग अलग पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को बदलते रहते हैं, जिसके कारण बेंजीन मॉलिक्यूल में अधिक स्टेबिलिटी मिलती है और उसके हाइड्रोजन ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। दे कैन बी इजीली सब्स्टिट्यूटेड। तो टाइम टू टाइम अलग अलग स्ट्रक्चर बेंजीन के दिए गए। पहले डावर ने स्ट्रक्चर दिया, उसने कहा कि बेंजीन रिंग में इस तरह से 3 बॉन्ड बनते हैं। एक बॉन्ड लंबा है बीच वाला सेंटर में और 2 बॉन्ड ये छोटे बॉन्ड हैं। दिस स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय डावर। देन वी गॉट
क्लॉज स्ट्रक्चर। क्लॉज एक और साइंटिस्ट था, उसने कहा कि इसका बेंजीन का जो एग्जिस्टेंस है वो दूसरी तरीके से एग्जिस्ट होगा। दिस वाज रादर क्लॉज स्ट्रक्चर, दिस वाज क्लॉज स्ट्रक्चर, and claw structure was like this. This is hexagonal benzene, and these systems they are having 3 pi bonds. This was claw structure. ये दो कार्बन साइडवेज ओवरलैप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है। पर ये स्ट्रक्चर डाबर का स्ट्रक्चर हो या क्लॉज का स्ट्रक्चर हो, दे कुड नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज। फिर एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट जो है बायर्स ने की, बायर ने अपना स्ट्रक्चर दिया, उसने कहा कि ये ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो इनके पास ही एग्जिस्ट करते रहते हैं, हर कार्बन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो उसी के ऊपर लाई करता है, और इस तरह से ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके सेंटर में एक तरह साइक्लिक मैनर में खड़े रहते हैं। फिर लेडेनबर्ग ने स्ट्रक्चर दिया, दिस वाज गिवन बाय लेडेनबर्ग। उसने कहा कि बेंजीन रिंग का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होना चाहिए, पर ये भी सभी प्रॉपर्टीज को बेंजीन मॉलिक्यूल की को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये स्ट्रक्चर है लेडेनबर्ग का, प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर इसको कहते हैं, प्रिज्म की तरह का स्ट्रक्चर है। दिस कुड नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज। जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और मोस्ट एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर दिया गया, दैट वाज केकुला स्ट्रक्चर। केकुला ने कहा कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड बेंजीन के अंदर पाए जाते हैं। उस स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 1 और 2 में सिंगल बॉन्ड है, तो अगले स्ट्रक्चर में 1 और 2 में डबल बॉन्ड होगा। 2 और 3 अब सिंगल बॉन्डेड है, 2 और 3 यहाँ डबल बॉन्डेड था। तो इट इज द स्ट्रक्चर विच वाज प्रपोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। विद द एडवेंट ऑफ द ऑर्बिटल के एडवेंट होने से ये पिक्चर में आया कि हर कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और उसके बाद हर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। जो p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले पाता वो साइडवेज ओवरलैपिंग कर लेते हैं, ऊपर वाले p ऑर्बिटल ऊपर ओवरलैप करेंगे और नीचे वाले p ऑर्बिटल नीचे ओवरलैप करेंगे, और इस तरह से एक डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन रिंग बनेगा जिसका आधा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड प्लेन ऑफ कार्बन के ऊपर फैला रहता है और आधा नीचे फैला रहता है। इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को कहते हैं रेजोनेटिंग और डीलोकेलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, और ये डीलोकेलाइजेशन के कारण ही बेंजीन को अधिक स्टेबिलिटी मिलती है, और डीलोकेलाइजेशन के कारण ही बेंजीन जो है वो एनर्जी लूज करता है, विच इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। राउंड अबाउट 150 किलो जूल एनर्जी बेंजीन छोड़ देता है, और ये एनर्जी छोड़ने के बाद बेंजीन को अधिक स्टेबिलिटी मिलती है। तो नाउ विल बी डिस्कसिंग ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में आपको पता लगा इसमें 6 कार्बन थे, हर कार्बन ने sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखानी है और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल पैदा करने हैं। हर कार्बन के कोने से आपने 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने हैं। और 3 इसमें ड्वार्फ लोब होते हैं, छोटे लोब, जहां इलेक्ट्रॉन पहले होते थे। हाइब्रिडाइजेशन के दौरान दोज इलेक्ट्रॉन हैज बीन लॉस्ट। तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया आपके पास 6 कार्बन कार्बन में 6 सिग्मा बॉन्ड दे आर प्रोड्यूस्ड, और जो हाइड्रोजन है वो sp2 ऑर्बिटल के साथ दोबारा ओवरलैप कर गए। तो ये सिग्मा बॉन्ड 6 और बन गए। Up to now we have produced 12 sigma bonds between carbon and hydrogen and carbon and hydrogen, और उसके बाद एक p ऑर्बिटल है जो लंब रूप से इनका हर एक कार्बन का खड़ा हुआ है। अब इस पिक्चर के बाद हम सेकंड पिक्चर बनाते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के हम बॉन्ड दिखा देते हैं जो ओवरलैपिंग से बन चुके हैं। ये आपके पास सिस्टम बन चुका है। अब हर कार्बन में एक p ऑर्बिटल है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया
वो साइडवेज ओवरलैप करके 3 बॉन्ड बना सकते हैं। ये केकुला के स्ट्रक्चर को हम वेरीफाई कर रहे हैं। इस तरह भी ओवरलैपिंग हो सकती है और ओवरलैपिंग दूसरी तरह से भी हो सकती है, उसको भी देख लेते हैं। ओवरलैपिंग कैन बी दिस वे आल्सो। हर कोने पे एक हाइड्रोजन वैसे ही जुड़ा रहता है। अगर हम इस स्ट्रक्चर को आधार मानते हैं तो आप देखेंगे ये केकुला के स्ट्रक्चर को वेरीफाई करता है। These are केकुला स्ट्रक्चर। तो ये मोस्ट एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर है जो ऑर्बिटल पिक्चर के आधार पे हमने सजेस्ट किया है, और ये स्ट्रक्चर बेंजीन मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज को व्यक्त करता है, सभी प्रॉपर्टीज को एक्सेप्ट करता है, एक्सप्लेन करता है। अब लास्ट में जो है ये पी ऑर्बिटल डीलोकेलाइज होने के लिए आपस में सभी पी ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप कर लेते हैं। जो पी ऑर्बिटल की जब डिस्टेंस बराबर है तो जब वो इधर ओवरलैप कर रहा है तो उधर भी तो ओवरलैप कर सकता है। तो डीलोकेलाइजेशन इसको कहते हैं, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो पी ऑर्बिटल है बेटा, अभी हमने इनको अल्टरनेट ओवरलैप करवाया था। अब ऊपर वाले लोब आपने ऊपर ओवरलैप करने हैं डीलोकेलाइजेशन के लिए, और नीचे वाले लोब नीचे ओवरलैप करने हैं। तो इस तरह से बेंजीन रिंग में एक डीलोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉन रिंग बन जाता है, और बेंजीन को हम इसी तरह से व्यक्त करते हैं, या प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए हम अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिखलाते हैं। तो दिस इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन which explains all the properties of benzene। उसके एडिशन रिएक्शंस को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है, उसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को भी अच्छी तरह एक्सप्लेन करता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन which we have now discussed. Now we'll be discuss the different types of isomerism found in benzene and the method of preparation and chemical properties of benzene. We'll take it in the